My name is Andrew Kinja Mutugi from Kenya, and I have been a Global Peace Ambassador from 2020. That's when I joined actively participation and engagement on UN Sustainable Development Goals, and I realized that the Global Peace Chain was a formidable platform where we would be able to express the issues of youth programs, peace and stability, and we were able to give the youth a direction on how we would like them to engage. It has been wonderful. It has been a wonderful experience. I've been able to interact, to make the program lively, and it has been wonderful and awesome. What is your feeling about the be a part of Peace Conference and winning the Peace Award? About this word, I was surprised actually that many people was amazed by the speech that I presented. It was about Syria, that I'm here to deliver a message about Syria, that is a country of peace and safe. And although all the war and the bad events, Syria remains beautiful. Spread the word of peace means a lot for me because, like we are youth trying to do something good to our countries. So this is our duty to our countries. So today's participation in the Global Peace Summit and throughout, it has been such an amazing journey, and I feel that it really stresses on the idea that unity in diversity is such an important fact of our world today, where pluralism, active engagement in diversity, seeing diversity as a source of strength. And this is what this international summit is about, like getting together with our differences and similarities, dialoguing, seeing each other as human beings, and helping each other to make ourselves and the world a better place. I think the award is not mine, it's everyone's. It's not mine, it's mera nahi hai, it's hamara, all right? It's ours, right? And really I represent the people of this summit, to tell everyone who's listening, do spread salam or peace, spread salam or peace in the world, and it starts with yourself. हमारे साथ आला अल बहरामी हैं जो कि सऊदीया को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस ग्लोबल समिट कॉन्फ्रेंस के अंदर. First of all, this Global Peace Summit is very amazing, especially that we meet people from different nationalities. They came all in the name of one word, peace. Salam. So of course it's such a wonderful place to be in, and it's actually an honor to be part of this summit. So winning this prize, for me, I already won by participating in this summit. But winning this prize proves to me that I should keep being a peace ambassador. हम यहाँ ग्लोबल पीस समिट दुबई 2023 में मौजूद है, जहाँ पे हिज एक्सीलेंसी जनाब फैसल नियाज तिर्मिज़ी ने स्पेशल अपीयरेंस दी यहाँ पे और लोगों को अवार्ड दिए. तो इनसे बात करते हैं कि आज का ये जो समिट हुई है, इनके क्या ख्यालात हैं. जी सर, वेलकम टू हकाइक न्यूज़. क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया जी. पहले तो मुझे मदऊ करने का और मेरे लिए बहुत इज़्ज़त का मकाम है और बायस मुसरत है कि मैं दुनिया भर के जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनसे मिलने का मौका मिला. और मुझे आज ये ग्लोबल समिट अटेंड करते हैं मैं कुछ 30-35 साल पहले चला गया, जब मैं ख़ुद कनाडा वर्ल्ड यूथ में कॉलेज में मैं कोई 4 महीने कैनेडियन फैमिली के साथ रहा था. मेरे साथ कैनेडियन पाकिस्तानी फैमिली के साथ 4 महीने रहे थे. तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आजकल के दौर में, जहाँ पे इतने मसाइल हैं, जंगें हो रही हैं, गुरबत है. इसमें अगर ये जब आज ये लोग बच्चे मिलते हैं आपस में, तो ये मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान, मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया जाता है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने मुझे मैसेज आया था तो मैंने कहा कि जी मैं आऊँगा 15-20 मिनट के लिए, और मैं तकरीबन घंटा बैठा और बड़ा खुशी हुई इन बच्चों की बातें सुन के. जो बातें कर रहे हैं वही चीज़ें हमें चाहिए. हमें मोहब्बत चाहिए, भाईचारा चाहिए, अमन चाहिए, रोज़गार चाहिए, तालीम चाहिए, इक़्तिसाद चाहिए. तो बड़ी खुशी हुई जी. क्रेडिट आप दोनों को कि आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया और मुख्तलिफ़ ममालिक के बच्चों से मिलने का मुझे मौका मिला. और सबसे खुशाइन बात थी कि सिंगापुर, सीरिया और सऊदी अरेबिया, 3 मुल्क जो सीन से या एस से शुरू होते हैं, तीनों विनर्स थे जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट हुए थे. बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी
उन सारे बच्चों को भी। ग्लोबल समिट 2023 ग्लोबल पीस चेन के सीईओ जनाब कामरान जफर हमारे साथ हैं। वेलकम टू हकाइक न्यूज़। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। सबसे पहले तो हकाइक न्यूज़ का बिलअमूम और आपका बिलखुसूस बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और आपकी सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहती है, और ये एक साल बाद गालिबन हमारी दूसरी मुलाकात है। तो ग्लोबल पीस समिट का जैसे कि आपने जिक्र किया कि दुबई के अंदर ये हमारी दूसरी कॉन्फ्रेंस है, तो ये कॉन्फ्रेंस हम करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्लोबल पीस चेन। ग्लोबल पीस चेन एक अमेरिकन इदारा है जिसका ताल्लुक जिसका नेटवर्क तकरीबन दुनिया के 150 ममालिक में फैल चुका है, और 150 ममालिक के अंदर हमारी ये टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। और जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इंटरनेशनल इवेंट का, जैसे कि आप इसमें इवेंट में भी देख सकते हैं, हर हमारे इवेंट में तकरीबन 70 से 80 ममालिक के लोगों की नुमाइंदगी होती है, और वो इकट्ठा होते हैं पीस को लेकर, पीस के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इस दुनिया में मामलात ज़ेर बहस होते हैं, ज़ेर गौर होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसका कोई सलूशन प्रपोज कर सकें। उस सलूशन को हम कोशिश करते हैं कि जो रेलिवेंट इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन तक हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ। तो दुबई के अंदर ये दूसरा हमारा कॉन्फ्रेंस था। पिछले साल जब हम दुबई की कॉन्फ्रेंस में थे तो आपको शायद याद होगा कि वो सेम डे था जब यूक्रेन और रशिया की जो है जंग छिड़ी थी, और उसमें अभी हमने ये रेजोल्यूशन पास की थी कि व्हाट द यूथ ऑफ द वर्ल्ड वांट। उस वक्त तकरीबन 80 ममालिक बैठे थे और सब ने एक ही रेजोल्यूशन पास की थी कि हम अमन चाहते हैं, और ग्लोबल पीस चेन भी इसी के ऊपर बिलीव करती है कि जिस भी दो ममालिक के दरमियान अगर कोई तनाज़ा है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इसराइल फ़लस्तीन हो, आर्मीनिया अज़रबैजान हो, रशिया यूक्रेन हो, या पाकिस्तान और इंडिया ही क्यों ना हो, तो इनके जो तनाज़ात है उसका हल सिर्फ और सिर्फ टेबल पे ही निकल सकता है। क्योंकि जब भी किसी रिवायती जंग की तरफ कोई भी मुल्क जाता है तो सिर्फ इंसानियत हारती है, कोई मुल्क जीतता नहीं है। तो इस मिशन को लेके हम दुबई में एक दफ़ा फिर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम कीनिया में थे, उससे पहले थाईलैंड, आर्मीनिया, अज़रबैजान, टर्की, मालदीव, उज़्बेकिस्तान, इन वगैरह वगैरह ममालिक में हम ऑलरेडी अपनी ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरे ख्याल में मेरे लिए तो ये बाइस से एजाज़ है। मेरे ख्याल में बाकी तमाम पाकिस्तान के लिए भी ये एक बाइस फ़ख्र पॉइंट है कि जो एक इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह का एक इदारा चल रहा है। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह की लोकल मतलब एक पर्सनल लेवल पे जितनी भी कोशिशें की गई हैं पाकिस्तान दुनिया में, इससे बड़ी कोई कोशिश नहीं होगी। मैं क्लेम करता हूँ कि हमारा जो वॉलंटियर का नेटवर्क है वो दुनिया भर में बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़ा नेटवर्क हमारा वॉलंटियर्स का है। 22,000 से ज़्यादा जो वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, और 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारी पेंडिंग हैं जिनको हम अभी प्रोसेस में कर रहे हैं। तो ये एजाज़ एक पाकिस्तान के एक सूबे के एक छोटे हिस्से, रहीमिया खान का शायद आपने नाम सुना हो, उससे निकलने वाले एक लड़के को हासिल है कि वो इतनी 150 ममालिक की जो एक तंजीम है उसको वो लीड कर रहा है। ज्वाइन तो इसको कोई भी इंसान कर सकता है, हमारी वेबसाइट पे जाके उसको जो है ना सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जो शख्स हमें ज्वाइन करे तो आया वो वाकई ही दुनिया के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ही ज्वाइन कर रहा हो, ना कि वो सिर्फ उसका पर्पस घूमने फिरने का ही ना हो। इसीलिए आपको अंदाज़ा होगा कि हज़ारों लोग जो है ना हमारे इस दुबई के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, लेकिन चंद 100 लोग जो है ना उस पूरे प्रोसेस को पास करते हैं। हमारा एक बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का जो है प्रोसेसिंग सिस्टम है, उसमें हमारी जजेस पैनल भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों को हम अपने साथ जोड़ें जो वाकई कुछ कर भी सकते हैं और कुछ करना चाहते हैं। और ग्लोबल पीस चेन है तो इनका जो इनिशिएटिव है बड़ा ज़बरदस्त है। ग्लोबली एक जगह पे इकट्ठा करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आजकल जो एक मीडियम जो इंटरनेट और ये सोशल मीडिया इतना जो है वो बढ़ गया कि दुनिया सुकड़ के एक मुट्ठी में आ गई है। तो इसके साथ ही हमारी गुड विशेज़ हमेशा इनके साथ रही हैं और हमेशा रहेंगी। तो मैं साइन ऑफ करता हूँ। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, हकाइक न्यूज़ दुबई। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ग्लोबल पीस चेन की तरफ से एक ग्लोबल समिट जो है वो हुई है, आज उसकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम हमारे साथ है, तो इनको कांग्रेचुलेट करेंगे हम। और एक बड़ा सक्सेसफुल इवेंट इन्होंने किया है। तो चंद लोगों से हम बात करते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं जी आप। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि दुनिया से सारे लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक ऐसा एक्सचेंज दिया जाए और प्रोग्राम हम करें, और इसके ऊपर पीस के ऊपर हम लोगों को मोटिवेट करें और बताएं उनको कि पीस क्या है। और हर चीज़ की ये ज़रूरत नहीं है कि हम लड़ाई करें या वो करें, पीस और टॉक के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इट वॉज़ अ रियली गुड एक्सपीरियंस वेल कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन। सो बहुत मज़ा आया लोगों के साथ बात करके और मिलके। मैं ये कहूँगी कि हमें इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो अटेंड करनी चाहिए ताकि हमारे जो है अमन हर जगह फैला सके, और जो हमारे आसपास ममालिक में हमारे खिलाफ और हम एक दूसरे के साथ गलत रवैये हैं या कोई गलत फहमियाँ हैं तो वो दूर हो सके। बढ़ चढ़ के
हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए जिससे हमें अमन और पीस का पैगाम पूरी दुनिया में लेके जाए. Could say about a lot of things about this peace summit because we really needed this thing, and in every part of the world they experience the same problem. So by bringing them here and looking for a solution of the challenges, that one has really acknowledged a lot of people, and it's one thing we really appreciate. मुझे इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, जैसा कि हमने जीपीसी स्टार्ट किया था, तो मिस्टर कामरान है और मिस्टर उस्मान है, मोहम्मद अहमद साहब हैं, इनके एफर्ट से आज ये इदारा इधर तक पहुंचा है कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ में ये समिट अरेंज करवा रहे हैं और पूरी दुनिया से इंटरनेशनल जो एम्बेसडर्स हैं वो इधर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और ये अमन का पैगाम दे रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ को कि हम अभी भी यूनाइटेड हैं. तो इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव इमेज आता है पूरी दुनिया में.